Hello everyone. Today we will study about new topic language development theory of B.F. Skinner, Noam Chomsky and Bernard Bernstein. The first theory of B.F. Skinner. His full name was Baruch Frederick Skinner. His fields are psychology, philosophy and linguistics. He is known for operant conditioning theory, radical behaviorism, behavior analysis, verbal behavior. B.F. Skinner was an American psychologist, behaviorist, author, inventor, and social philosopher. He was born in March 1904. He was a Edgar Pierce Professor Psychology at the Harvard University from 1958 until his retirement in 1974. The operant conditioning theory. B.F. Skinner believed that children learn language operant conditioning. In other words, children receive reward for using language in the functional manner. For example, children learn to say word drink when he was thirsty. He received something to drink which reinforced his use of the word for getting a drink. ये कहते हैं कि जब किसी बच्चे को भूख लगी होती है वो ड्रिंक वर्ड का यूज़ करता है तो ड्रिंक विच reinforce his use of the word is getting a drink. जो वो ड्रिंक वर्ड का यूज़ करता है वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट होता है जो उसे जब उसे पानी मिलता है तो वो ड्रिंक वर्ड सीख जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम ड्रिंक वर्ड का यूज़ करते हैं. ये नॉर्मली इन्वायरमेंट से बच्चा सीख जाता है. ओके, देयर आर 4 बेसिस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट: मोटिवेशन, ऑपरेशनल, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली, रिस्पॉन्स एंड reinforcing stimuli. First of all, motivating operation. Behavioristic concept used to explain variation in the effect in the consequence of behavior. Most importantly, motivating operation affects how strongly the person is reinforced or punished by the consequence of their behavior. Example: food diversion is the motivating operation. If a person is hungry, food is strongly reinforcing, but if a person satiated, food is less reinforcing. He says that जब किसी इंसान को ज़्यादा भूख लगी होती है तो उसे अगर खाना दिया जाए तो उसके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ज़्यादा रीइंफोर्सिंग होगा. अगर किसी इंसान को भूख नहीं लगी है, अगर हम उसे ज़बरदस्ती खाना दे रहे हैं या उसे कम भूख लगी है तो हम उसे खाना दे रहे हैं तो उसके लिए लेस रीइंफोर्सिंग होगा क्योंकि वो चीज़ उसे चाहिए ही नहीं थी या उसे कम चाहिए थी. ठीक है. Second one is discriminative stimuli. DS is a type of stimuli that is used consistently to gain a specific response and that increase the possibility that the desired response will acquire. Response is an answer of reaction to somebody and something. Reinforcing stimuli. It is important in this theory. There are 2 types of reinforcement: positive and negative. Okay. Today we will talk about this reinforcing stimuli that is important in B.F. Skinner's operant conditioning theory. Okay, making a behavior stronger by following the behavior with a pleasant stimulus. B.F. स्किनर ने एक रेड पे एक्सपेरिमेंट किया था. उसे बॉक्स में बंद करके उसे उसमें एक लीवर लगाया हुआ था जिसे प्रेस करने पर उस बॉक्स के अंदर फूड आता था. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या होगा कि जब रेड लीवर को प्रेस करेगा तो उसे फूड मिलेगा तो वो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अगर रेड जो चूहा लीवर को प्रेस कर रहा है, प्रेस करने पर उसे करंट के शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो वो चीज़ वो दोबारा नहीं करेगा. ऐसे ही बच्चे के लिए भी होता है. अगर हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे तो बच्चा उस चीज़ को करेगा. अगर हम उसे नेगेटिव देंगे तो वो बच्चा नहीं करना चाहेगा, नहीं सीखना चाहेगा. तो
positive reinforcement is most important in children's life from infant infant to adult. It is most important. Okay, Skinner viewed baby as an empty vessel in which language had to be put into. He said that children learn language from their environment and consequence of the environment action. Skinner says that the children learn language through the positive reinforcement. His basic explanation of the development of speech was the that parents and the reward infant vocational such as bubbling by giving the infant action their increase to frequency and focalization. He just suggested that the children will not progress from bubbling to language unless the parents shape the children language behavior. For example, if an infant suddenly said the word da da da, parents might respond excitedly to this thing that the children trying to say the word daddy. ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो इन्वायरमेंट से चीज़ को सीखता है, ठीक, वो इमिटेट करता है चीज़ों को, इन्वायरमेंट से इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स से या किसी भी जो उसके एनवायरनमेंट में आसपास में चीज़ें होती हैं वो देख के सुन के इमिटेट करता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो बबलिंग करता है, तुतला के बोलता है। तो अगर जो पेरेंट्स हैं उस बबलिंग को अगर शेप नहीं देंगे, उसे अगर सही लाइन पे नहीं लाएंगे तो बच्चा बबलिंग करेगा। अगर उसे जैसे बच्चा डा 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 बोल रहा है, अगर पेरेंट्स उसे डैडी वर्ड बोल देंगे कि ये डैडी वर्ड बोलना चाह रहा है, ठीक, तो बच्चा उसे ग्रेस्प कर लेगा, उसे जल्दी सीख लेगा, ठीक है, इमिटेट करेगा। इस पूरी थ्योरी में मेन फोकस बीएफ स्किनर ने बिहेवियर, इन्वायरमेंट एंड मेन रिइंफोर्समेंट में किया है। बच्चा इमिटेट तो करता ही है और साथ ही साथ रिइंफोर्समेंट भी बच्चे के लिए सीखने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे बच्चा जल्दी सीखता है, जल्दी इमिटेट करता है, जल्दी चीज़ों को ग्रेस्प करता है। ओके, नेक्स्ट थ्योरी है नॉम चॉम्स्की। अबाउट नॉम चॉम्स्की, चॉम्स्की इज एन American philosopher, theorist, linguist, cognitive scientist, historian, and social critic. He was born in 7 December 1928. Chomsky, also known as father of modern linguistics, he is widely known for his role in both linguistic as well as political activism. Described to the study of cognitive linguistics as the study of the language faculty of human mind. बीएफ स्किनर लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए, दोनों के लिए फेमस हैं, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। द थ्योरी ऑफ एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था नॉम चॉम्स्की थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न विद अ एड एबिलिटी टू लर्न एनी ह्यूमन लैंग्वेज। ही सेड ऑल चिल्ड्रन have a LED language acquisition device. The LED job is to encode into a child's brain the major principle of language and grammatical structure of the language. Chomsky say that all children learn the construction of sentence with the help of some rules. These rules are called generative grammar by Chomsky. This theory given by Chomsky in 1956-57. चॉम्स्की ने एलईडी थ्योरी दी थी, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। ये थ्योरी इन्होंने 1956-57 में दी थी। ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्म से
पूर्व ही एलईडी डिवाइस होती है। ये बच्चा बाहर आके नहीं सीखता है, ये जो डिवाइस होती है ये बच्चे के माइंड में जन्म से पहले से होती है। ठीक है, इससे बच्चा किसी भी चीज़ को ग्रेस्प कर सकता है, जल्दी सीख सकता है, ठीक, इनकोड कर सकता है किसी भी चीज़ को। These rules are called generative grammar। जो ये रूल होते हैं इन्हें कहा जाता है जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है। He said that every normal children have born with sentence structure and it helps to the student to learn basic language. He believed that language development is like our body our body parts such as legs, hand, mind, etc. ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है या सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे के शरीर में, जैसे लेग, हैंड, माइंड, हमारे जो हाथ पैर या माइंड हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये डिवाइस भी उतने ही इम्पोर्टेंट मनुष्य के शरीर में जन्म से पहले से होते हैं। He did not use any experiment to prove his theory, so this is different from other theories because he said language development is congenital। इन्होंने इस थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए, इस थ्योरी को देने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने नहीं किया था। जैसे B.F. स्किनर ने रैट पे किया था और अदर जो साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर हैं उन्होंने अलग अलग चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया था उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, मगर इन्होंने किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। सपोर्टिंग पॉइंट, इसके जो सपोर्टिंग पॉइंट हैं वो है व्हेन अ चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक ही नेवर मेक अ बेसिक मिस्टेक। ही पुट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन करेक्ट ऑर्डर। ओनली मिस्टेक दैट फ्रॉम children notice if we speak wrong। बच्चा इनकी जो थ्योरी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं या किसी जो अपनी मदर लैंग्वेज जो भी हम बोलते हैं उसमें हम ये नहीं सोचते कि हमने सब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, वर्ब कहाँ पे लगाना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, हम बोल देते हैं बस। ये अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो बच्चा उसको नोटिस कर लेता है कि हम ये चीज़ गलत बोल रहे हैं, मगर ये नहीं बोलते कि तुमने ऑब्जेक्ट पीछे लगाया है, ऑब्जेक्ट आगे लगाया है, सब्जेक्ट पीछे लगाया है, वर्ब गलत लगाया है, ये हम नोटिस नहीं करते हैं, वो सिर्फ हम इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं। एंटी पॉइंट, अदर साइंटिस्ट and tourist says that language is an acquired trait, not innate tendency। अदर जो साइंटिस्ट और अंदर जो फिलोसोफर या साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसे डिनाई करते हैं कि बच्चे के अंदर कोई इनेट टेंडेंसी होती है। वो कहते हैं कि बच्चा इन्वायरमेंट में आके सीखता है, बट चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर ये एबिलिटी जन्म से पूर्व में होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी बच्चे में पहले से विद्यमान होता है। Okay, Noam Chomsky has been a huge help of development theory on linguistic and language development in children. Children's have born ability to learn any human language and explain it in his theory in language development। ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर इनेट जो डिवाइस होता है वो पहले से विद्यमान होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा हर चीज़ सीख लेता है। वो बाहर आके सीखने की उसे ज़रूरत नहीं है, वो पहले से उसके अंदर डिवाइस है जिससे वो सब चीज़ सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है बर्नस्टाइन की, बी बर्नस्टाइन। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। बेसिल बर्नस्टाइन, बेसिल बर्नार्ड बर्नस्टाइन, he was born in 1 November 1924 in Jewish। He was a British sociologist known for his work in the sociology of education। He worked in social linguistics and the
connection between the manner of speaking and social organization. द थ्योरी लैंग्वेज कोड, इनकी थ्योरी को कहा जाता है लैंग्वेज कोड. बी बर्नस्टाइन रिसर्च स्पीच एंड हाउ टू अफेक्ट एजुकेशनल. बर्नस्टाइन सजेस्टेड दैट क्लास difference in speech pattern we related to educational attainment. He divided language code into two parts. उन्होंने दो पार्ट में लैंग्वेज कोड को डिवाइड किया है. ठीक है, कि जो इंसान होता है वो लैंग्वेज को कैसे सीखता है, किस तरह से सीखता है, ने दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड, दूसरा है एलेबोरेट स्पीच कोड. Restricted speech code is kind of shorthand speech which Bernstein claimed to use by the working class and in more gentle by married couple. His This can involve not finishing sentence properly as there is a mutual understanding between the people having the conversation. This could involve the limited use of advanced English and uh, inclusion of adjective, adverb, or adverbial clause. This speech code trend to operate in term of particularistic meaning and as such are try to specific context. रिस्ट्रिक्टेड कोड में बर्नस्टाइन कहते हैं कि ये वर्किंग क्लास जो लोग होते हैं, वर्किंग क्लास होते हैं, या जिनके जिस बच्चे के माता पिता वर्किंग होते हैं और हाई सोसाइटी के जो होते हैं, वो अपनी बातों को छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, छोटे शब्दों में उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं. अभी मैं इसे आप आगे अच्छे से समझाऊंगी. पहले हम एलेबोरेट स्पीच कोड के बारे में जान लेते हैं. दिस लैंग्वेज कोड इज अ कम्प्लीटली अपोजिट ऑफ restricted speech code. In one stand claim that elaborated speech code are mainly used by the middle class and upper class. This means that they are longer word, complex sentence, universal language, and detailed descriptions. These speech pattern mostly used in UK education system. हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके हिसाब से मैं आपको उसको समझाऊंगी. ठीक है. इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट बर्नस्टाइन चूज 25-year-old children, one from a working class background and one from a middle class background, shown them 4 pictures and make up a story and ask that what they could see in 4 pictures. इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? इन्होंने 25 years old दो बच्चे लिए, जो 2 पर्सन लिए, और एक मिडिल क्लास का था और एक अपर क्लास का था. ठीक है. और उनके सामने एक पिक्चर रख दी और उनसे बोला कि इस पिक्चर जो स्टोरी है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप एक स्टोरी बताइए इस पिक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है. Middle class child explain every picture in detail in easy form, thus listener to understand the story without looking at the picture. But the working class children struggled with the detail and the aid of the picture, and listener would not have understood what was happening. जो मिडिल क्लास जो बच्चा था उसने उस पिक्चर को एक्सप्लेन इतनी वाइड तरीके से किया, मतलब एक विस्तृत रूप में इसको एक्सप्लेन किया, जिससे कि लोगों को पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जो पिक्चर थी उसे देखने की ज़रूरत नहीं, वो बिना पिक्चर देखे उन्हें वो स्टोरी समझ में आ गई कि उस पिक्चर में क्या क्या हो सकता है, हो गया होगा. बट जो वर्किंग क्लास था उसे इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. उसको एक्सप्लेन करने के लिए उससे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. उसे शॉर्ट वर्ड्स में वो समझा नहीं पाया, और जो लिसनर थे उन्हें वो समझ में नहीं आया. ठीक है. उन्हें
उस पिक्चर को देखने की ज़रूरत पड़ी। मिडिल क्लास में तो उन्हें पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट वर्किंग क्लास में उन्हें वो पिक्चर देखने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। Criticized by Harold Ration, he attacked Bernstein theory. He stated that Bernstein includes lower working class instead of working class. He said that there is track of evidence in the family structure that the result people um, who was lower working class family, that capacity and understanding also decreases. हेरोल्ड रोशन ने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। उनका मानना था कि जो इन्होंने लोअर क्लास और हायर क्लास की, जो वर्किंग क्लास की जो उन्होंने बात की है, ये इनवैलिड है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। बी बर्नस्टेन सोशियोलॉजिस्ट थे। सोशल तौर पे ये इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और बी एफ स्किनर ने बिहेवियरिस्टिक वे में इसकी थ्योरी दी थी। ठीक है। आज हमने 3 थ्योरी पढ़ी थी। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई है तो, और आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।